الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم زینا بزینة الایمان وجعلنا هداة مهتدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج 28 اکتوبر 2022 28 اکتوبر 2022 بروز جمعہ آندھرا پردیش کا ایک بڑا شہر وجے واڑہ میں لبیاں کے محلے مسجد توحید اہل حدیث میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی ضلع بلہاری کرناٹک آپ کے سامنے اللہ عز و جل پر یقین کامل رکھنے کے کیا فوائد ہیں اور انسان کو کیسے یقین کامل کے ساتھ جینا چاہیے، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب میں وجے واڑہ آتا ہوں، کیونکہ یہاں کے جماعت و جمعیت کے لوگوں میں، ان کے آنکھوں میں جو میرے لیے محبت اور تڑپ ہے، یہ واقعی میں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسے پیسے دے کر نہیں خرید سکتے، یہ دلوں سے آنے والی محبت اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ واقعی میں آپ لوگوں کا بڑا گرم جوشی کے ساتھ آپ استقبال کرتے ہیں علماء کا، اور خاص کر میں اپنی بات کروں گا، بڑی عقیدت اور محبت ہے آپ لوگوں سے مجھے اور مجھ سے آپ لوگوں کو۔ اللہ ہماری یہ محبت تادم حیات اللہ قائم رکھے۔ بہت سارے شہروں کو جاتا ہوں میں، ادر اسٹیٹ کو بھی جاتا ہوں میں بیان دینے، ایک دن میں 3 بیانہ کنکا بھی کریا بھی نہیں، کرتا بھی نہیں۔ یہاں وجے واڑہ آیا تو کر تو، کہیں کو بولے تو تمہاری محبت ویسی ہے، تمہاری محبت کی انرجی، تمہاری دعاؤں کی انرجی الحمدللہ ویسی ہے۔ 2 بیانہ کر کو سستو پڑ جاتا میں، یہاں 3 بیانہ کرے تو ڈھیلا پڑتا نہیں، ماشاءاللہ فل ٹائٹ رہتا۔ تمہاری دعوت میں وہ انرجی ہے، تمہاری محبت میں وہ انرجی ہے ماشاءاللہ۔ اور میں دل کے گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں میرے مربی محترم مولانا ناصر عمری صاحب کا، بڑی خوبصورت انداز سے میرے پروگراموں کو ترتیب دیتے ہیں، جو یہاں کے شہری امیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے۔ ہمارے مرکزی مسجد کے ذمہ داران اور توحید مسجد کے ذمہ داران اور وجے واڑہ کے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، اور ہمارے حسین بھائی نمرا کالونی کے، ان کے گھر والے، تمام لوگوں کا میں ممنون و مشکور ہوں۔ واقعی میں دعوتی جذبہ اتنا بہترین ہے آپ لوگوں کے درمیان، لیکن افسوس، یاد رکھو میرا بیان کرنا کمال نہیں، آپ لوگوں کا بیان سننا کمال نہیں۔ بیان کرنے والا بیان کر کو عمل نہیں کریا تو بھی جہنم، سننے والے سن کو عمل نہیں کرے تو بھی جہنم۔ بیان کرنے والا بیان کر کو عمل کریا تو جنت، سننے والے سن کو عمل کرے تو جنت۔ ہمیں ایک پروگرام کی رسم یا فارمیلٹی پوری نہیں کرنا، تمہیں کیا نیت سے بڑھتی اللہ تمہارے دل کی کیفیت وہ بدلتا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 11، میرے اللہ کا اعلان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت، کسی انسان کے دل کی کیفیت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتا۔ تمہارے اندر اگر بدلنے کی فکر ہے، میں اب تک بے نمازی جیروں نہ رے، مولوی صاحب کیسا بھیانک بیان میں بولے، بے نمازیاں کا انجام کیسا خطرناک ہوتا کہتے، نہیں اللہ مجھے اب سے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے اللہ۔
अल्लाह मैं नमाजी बनना चाहता हूँ, अल्लाह तुम्हारे दिल में ये फिक्र आई तो चल्ला तुमने हिदायत देता। मैं नमाजी बनना करने की फिक्र भी तुम्हें नहीं पैदा करे तो तुम्हें जैसे कि वैसे रहती कभी नमाजी नहीं बनते। एक मिसाल बता रूँ मैं, चाहे नमाज पढ़ने के बारे में हो, हलाल खाने के बारे में हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने के बारे में हो, अल्लाह के घरों को मस्जिदों को आबाद करने के बारे में हो, दीन पर चलने के बारे में हो, दीन पर खर्च करने के मामले में हो, कोई भी मामला हो, अल्लाह बोलता अना ज़न्नी अब्दी माक, मैं मेरे बंदे के गुमान के बराबर उसके साथ रहता हूँ। बोलता तेरी नीयत जैसी रहती फल वैसा दे तू मेरे बंदे, तू जैसी नीयत करता वैसा मैं तेरे दिल को बदल डाल तू मेरे बंदे। बोलता अल्लाह हमारे दिल में क्या नीयत रहना। याकूब मौल साहब कहते उनकी बಳ್ಳारी से कर्नाटक से आती कहते अच्छा बयान कर देंगे, सुनेंगे जाएंगे। अगर ये नीयत है सुनती भी जाती भी तुम्हें, तुम्हारे दिल में तुम्हारे दिमाग में ना मेरे हदीसा बैठती ना आयता बैठती, ना तुम्हें इबरत की निगाह से सुनती, ना तुम्हें इबरत मिलती। अगर तुम्हारी नीयत तुम्हारी ज़िंदगी के इतने कीमती औकात तुम्हें अल्लाह के घर में यहाँ खर्च कर को बैठी और मुंतज़मीन सवा के हज़ारा के रुपए खर्चा कर को वो डिस्प्ले कहते, ये कैमरे वाले को कहते, ये शामियाने वाले पर्दे वाले कहते, आप लोगों को दावत देने में जितने पैसे खर्चा कर को, ये चाय के वैसे समोसे जो भी पैसा खर्चा, इनका खर्चा करना उस वक्त काम आता जब आप अमल करने की नीयत से यहाँ बैठ को सुनेंगे तब। वरना उल्टे घड़े पर 50 घड़े पानी डाले तो भी अंदर एक खतरा जाता नहीं। तुम्हें उल्टे घड़े बन को बैठो न को, सीधे घड़े बन को बैठो ताकि हर बात तुम्हारे दिल से, तुम्हारे कानों से, तुम्हारे सीने के अंदर, तुम्हारे क़ल्ब के अंदर पैवस्त हो जाए। अच्छी नीयत से बैठो। कुछ लेना हमें, हमारी ज़िंदगी में जो खामियां हैं उसे दूर करना हमें, हमारे ज़िंदगी में जो गलतियां हैं उसे दूर करना हमें। अब तक हमें ऐसे बिगड़े हुए थे, आज से हमें बन जाना। ऐसी नीयत से बेटा अल्लाह खुद तुम्हारे दिल की दुनिया बदल को रख डालता। अल्लाह बोलता या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरे रसूल हो तुम्हारा काम पहुंचाना है, पहुंचाओ। सूरह माइदा की 167 नंबर आयत, तुम्हारा काम पहुंचाने का है, पहुंचाओ। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, बेशक तुम किसी को हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने कब्जे में ले रखा है। वो है दिलों को बदलने वाला, वो है हिदायत का सर चश्मा तुम्हारे ऊपर उंडलने वाला। अगर तुम्हें हिदायत लेने की नीयत से बैठे तो हिदायत मिलती नहीं। क्या इंटरटेनमेंट करती जी मौलाना, हंसेंगे उठ को जाएंगे बोले, यहाँ से घुसती यहाँ से निकल जाती, सिर में भी बैठते नहीं, दिल में भी बैठते नहीं बात। कुछ लेने की नीयत से बैठो। बयान करने वाले बहुत सारे मिलेंगे, सुनने वाले सामीन बहुत सारे मिलेंगे। अल्लाह के नबी की वो हदीस याद करते हैं तो हम जैसे दाइयों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नम में एक ऐसे दाई को लोग देखेंगे जो अपने पेट की आंतड़ियां बाहर निकाले हुए ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की के किनारे घूमता है। लोग देखकर पूछेंगे क्या जी मौलाना इतने बड़े आलिम ना जी, तुम्हें गले फाड़ले को क्या बयाना करते थे ना जी, तुम्हें यहाँ कैसा जी आई तुम्हें। अब उन्हें वो पब्लिक को भी देख को पहचानता, अरे विजयवाड़ा वाले नहीं तुम्हें हो ना जी, मेरे बयाना सुन को तुम्हें भी रोते थे ना जी, गोड़ो का तो तुम्हें कैसा जी आए जहन्नम में। मौलाना इधर से सुन को उधर से छोड़ डालते थे हमें, दूसरे दिन पूछे तो याद भी रहती थी नहीं, हम ना एक हदीस एक आयत चुप फॉर्मेलिटी पूरा कर को समोसे खाक जाने आते थे, हम ना क्या भी याद नहीं था, हमें बदले नहीं तुम्हारे बयाना सुन को, सुने उठ को गए। अल्लाह अकबर। बोलने वाला बोल को अमल नहीं करा तो जहन्नम में, सुनने वाले सुन को अमल नहीं करे जहन्नम। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनहुम, अल्लाह ऐसे बेअमल रियाकारों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अमल करके जन्नत में जाने वाला मोमिन हम सबको अल्लाह बनाए। ये जो वक्त हम देकर बैठे हैं ना यहाँ तौहीद मस्जिद में, बड़ा कीमती वक्त है, ज़िंदगी का बड़ा कीमती वक्त। इन महफिलों पर मेरा परवरदिगार जन्नतें वाजिब करता है, इन दीनी मजलिसों पर अल्लाह ताला जहन्नम हराम करता है। बेमकसद आकर बैठने वाले को भी अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता। इतनी खुश नसीब महफिल, जब इस महफिल के लिए ज़िंदगी में तुम्हें टाइम दे रही, वक्त दे रही, नीयत बदलने की रखो, नीयत हिदायत हासिल करने की रखो, नीयत कुछ पाने के बाद आगे पहुंचाने की रखो, उस पर अमल करने की रखो। खाली इरादा तुम्हें करेंगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों को कैसे भर डालता मालूम, कैसा भर डालता। हमारा जज्बा
دین کی خدمت کرنا آگت, ہمارا جذبہ دین کی دعوت کا کام کرنا آگت. اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہزاروں حدیثیں ہمارے مائنڈ میں بٹھا ڈالا, ہزاروں آیتیں ہمارے مائنڈ میں بٹھا ڈالا. ہمیں بھولنا چاہے تو بھی نہیں بھولتے. کیوں؟ ہماری نیت دین کی خدمت کرنا. تمہیں بھی ویسے دائی بننے کی کوشش کرو, پھر دیکھو اللہ تمہارے دلوں کو شرح صدر کے ذریعے کیسے منور کر دیتا تمہارے سینوں کو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اللہ میرے دل کو کھول دے, اللہ میرے لیے دین سیکھنا آسان کر دے اللہ, اور میرے زبان کی گانٹ کو آسان بنا دے اللہ. تو چاہے تو ہر کام آسان کر دے. دعا کرو جی, ربی زدنی علما پڑھو جی. اللہم انفعنی بما علمتنی, اے اللہ تو نفع بخش علم دے کیونکہ تو ہی سکھانے والا ہے. وعلمنی ما ینفعنی, اے اللہ جو کچھ تو مجھے سکھا اس میں میرے لیے نفع پیدا کر. وزدنی علما, اللہ میرے علم میں مزید اضافہ کر. یہ دعائیں پڑھو, پھر دیکھو تمہارے سینے کو اللہ علم سے کیسے منور کرتا. امت کا ہر آدمی دائی ہے, یاد رکھو. ہم جیسے 8 سال 10 سال پڑھ کو ڈگریاں لے کے آئے والے مولانا دائی نہیں. امت کا ہر آدمی دائی ہے, ہر عورت دائی ہے, ہر بوڑھا دائی, ہر بچہ دائی, ہر عاقل بالغ دائی ہے. قرآن حدیث کی جتنی باتیں مجھے معلوم, اللہ مجھ سے سوال کرے گا. جتنی حدیثیں جتنی آیتیں تم سنو گے, اللہ اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. کیا جواب دو گے آپ لوگ؟ میرے بھائیوں, آج کا یہ پروگرام جو توحید مسجد میں قائم کیا گیا ہے, دیکھنے مسجد چھوٹی ہے لیکن آپ کا دل بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. میں کبھی یہ نہیں سمجھتا کتنے کم ہے نا بھائی پبلک, کتنے ذرے ہے نا بھائی آدمی. نہیں, ایک آدمی بیٹھے تو بھی الحمدللہ ویسا بیان دے. تو ہماری عمل کو, ہماری خدمت کو اللہ قبول کر لیا تو بس. دنیا والوں کے دکھانے کرنا نہیں, کوسا بھی کام اللہ کو خوش کرنے کرنا. اور تمہاری زندگی کے 3 مشن اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, یہ بات یاد رکھ لو. پوری دنیا سے بے نڈر ہو جاتی, تمہیں نڈر ہو جاتی, کسی مائی کے لال سے نہیں ڈرتے تمہیں. 3 چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں. نمبر 1, تمہاری روزی روٹی کا مالک کوئی انسان نہیں, اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات دل میں دماغ میں بٹھا لو. کسی سے ڈر کو جینے کی ضرورت نہیں. تم نہ اے میرے اونر کو کیا تو بولا تو نوکری سے نکال ڈالتا, کیا کی اے میرے سسرے کو بولا تو ناراض ہو کو مجھے گھر میں آنے دیتا نہیں, کیا کی اے میرے فلاں استاد کو کیا بولے تو انہوں مفتی صاحب ناراض. پوری دنیا کو کیئر کرنے کو ڈرنا ہے, صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو. کیونکہ تمہاری روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. کوئی مائی کا لال تمہارے منہ کے لقمے کو نہیں چھین سکتا. جتنے روزی کے دانے, جتنے روزی کے خطرے تمہارے مقدر میں اللہ طے کر دیا, وتے دانے وتے خطرے پی کچھ تمہیں مرتی سو, اس سے ایک کم دانا نہیں کھاتے, ایک قطرہ کم نہیں پیتے, اور ایک دانا بڑھ کو بھی نہیں کھاتے, ایک قطرہ زیادہ بھی نہیں پیتے. وتے دانے کھانے کے بعد, وتے پانی پینے کے بعد ہماری اینڈ آ جاتا. ہماری روزی روٹی کا مالک اللہ وحدہ لا شریک. نمبر 1. نمبر 2, ہماری عزت ذلت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں, اللہ عز و جل کے ہاتھ میں. یاد رکھ لو. ائی انہیں میرے بارے میں کیا کی بول رہا کرتے بھائی, ائی انہیں میرے بارے میں کیا کی افواہ پھیلا رہا کرتے بھائی, ائی یہ جماعت والے میرے دشمنہ بن چھوڑی بھائی, ائی وہ گلیاں والے میرے ساتھ کیا کی سازشاں کر رہی بھائی. ارے پوری دنیا تمہاری دشمن بننے دو. مکے میں جب نبی علیہ السلام توحید کا ڈنکا بجائے, ایک اللہ کا ڈنکا بجائے, پورے مکے والے دشمن بن گئے. اللہ کے نبی کو طرح طرح کی گالیاں دیے, نبی کو پتھروں سے مارے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے نہلا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے ان شأنک هو الابتر, یہ تو ذلیل نبی, دم کٹا نبی. اللہ نے کیا کہا, اے نبی تم ذلیل نہیں ہوں گے, تمہارا دشمن ذلیل ہوگا. اللہ کے نبی کو وطا برا بھلا بولے تو, وتے گالیاں دیے تو, وطا مارے تو کیا نبی ذلیل ہو گئے کیا؟ نہیں. ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا. آپ کو ذلیل کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے ہم نے ذلیل کر دیا. ہماری عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی دنیا کے مائی کے لال سے مت ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ تم نہ عزت دینے والا, اللہ تم نہ ذلیل کرنے والا. 2 ہو گئے. نمبر 3, تمہاری زندگی موت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ. تمہیں بی جے پی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, RSS سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اے بجرنگ دل والے کیا مار ڈالتی کہ اے وہ گایاں کاٹنوں کو, گایاں ہمارے اماں کا بول ڈالے, کیا کیا آ رہی. ابھی دیکھو آج گئی کو ہمارے اماں کہیں, سبم بیل کو ہمارا بابا کہتی, پرسوں بھینساں کو ہمارا نانا ہمارا دادا کہتی.
क्या भी काटनाश नहीं करती। मुर्गी को हमारी छोटी बहन कहती, खाली अंडे उबाल ले खाओ, बता बैठो रे बेटे, तुम्हें क्या भी खाना नहीं, क्या भी पीना नहीं। पूरे भैंसा, खुलगे, गाया, बैला, पूरे हमारे खानदान के लोग कहती, क्या करती तुम्हें? किसी से मत डरो, तुम्हारी जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। जब तक अल्लाह नहीं चाहता तुम्हारा बाल भी बिंगा नहीं कर सकता कौन भी। अल्लाह ताला से डरो। जो अल्लाह से डरता पूरी दुनिया उससे डरती। जो अल्लाह से नहीं डरता ना, गली में जाते सो कुत्ते बिल्लियां से भी अल्लाह उसे डराता। भौगत बोला तो हाथ पिचकले को मुतले छोड़ता हूं। रास्ते में क्या तो अंधेरे में उजला कपड़ा कौन तो हमारा अम्मा भी सुखने डाले रहती, पिन्ना टंगा को यूं हलते रहता, वहां देखे सो जुलाबन कर ले छोड़ता, कौन की हल रहा ना रे, दूर से उजला आगत। जो अल्लाह से नहीं डरता कुत्ते बिल्लियां से डराता, साए साए से अल्लाह ताला उसे जुलाबा लगा डालता। इसीलिए अल्लाह से डरना, अल्लाह पर भरोसा रखना। अल्लाह के मां सिवा कोई दुनिया का खाजा, कोई दुनिया का बाबा, कोई दुनिया का पीर, कोई दुनिया का मुर्शद तुमना नहीं बचाता। याद रखो, सिर्फ अल्लाह वहदुल्ला शरीक है जो दुनिया में तुमना रिज़्क़ दे सकता, इज्जत दे सकता, तुमना शोहरत दे सकता और आखिरत में जन्नत दे सकता। दुनिया में भी हर आफतों से बचाने की इज्जत अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आखिरत में भी हर परेशानियों से बचाने की जात अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसके मां सिवा कोई भी माई का लाल नहीं है जो तुम्हें बचा सके। न कोई पीर, न कोई पैगंबर, न कोई पीर, न कोई पैगंबर, कोई पैगंबर भी नहीं बचा सकता हम ना अल्लाह के हुक्म के बिना, अल्लाह की मर्जी के बिना। अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरो जी, अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरो जी। फिर देखो अल्लाह कौन सी मोहब्बत तुम्हारे साथ करता, कैसा अपनी आगोश मोहब्बत में तुम ना रखता, कैसा अल्लाह तुम्हारी हिफाजत में, अपनी हिफाजत में तुम ना ले लेता। मेरे भाइयों, अपने जिंदगी के मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करो, अल्लाह के सुपुर्द करो। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मेरे बंदे, व इज़ा सअलका फस्अलिल्लाह, जब तुम मांगना चाहे सिर्फ अल्लाह से मांग। व इज़ा इस्तअनता, जब तुम मदद तलब करना चाहे फस्तईन बिल्लाह, सिर्फ अल्लाह से मदद तलब कर। तेरे चप्पल का बेल्ट टूटा तो भी अल्लाह से मांग बा, अल्लाह से सवाल कर बा। क्यों? अल्लाह के नबी सिखाए हम ना तालीम ये। तेरे चप्पल का तस्मा टूटा तो भी अल्लाह से मांग। तेरे घर में नमक का कंकरा खाली हुआ तो भी अल्लाह से मांग। डायरेक्ट पड़ोसियों से भीख मांगने निकलना को अल्लाह से मांग पहले। अल्लाह आज मेरे घर में नमक खाली हुआ, तू नमक का गैब से इंतजाम कर, मेरी कमाई में बरकत दे। अल्लाह से मांग पहले। नमक खाली हुआ, जा जा वो खाजा भी के पास मांगले का जा, जा उनके पास भीख मांगले का जा। भीख मांगने का कहीं सोचती पहले अल्लाह से मांगो जी, अल्लाह इंतजाम करता। तुम्हें खाली नमक मांगो, पूरे राशन का इंतजाम अल्लाह कर डालता। रत्ती मांगे तो हत्ती देता अल्लाह। ये दुनिया वाले कहने जाग हत्ती मांगो, चुमटी उठा के देती हूँ। नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, तस देखा चिल्लर 1000 रुपये दे भाई, चावल की पैकेट हो गई भाई, भाई 1000 दे भाई, मेरे पास 10 रुपये चुके, क्या भी नहीं रहे, लेना रत ले, जाना रत जा। तुम्हें हत्ती मांगे तो रत्ती उठा के देता इंसान। मेरा परवरदिगार कैसा, रत्ती मांगे तो हत्ती को देता परवरदिगार। अल्लाह को छोड़ को बंदन सामने कहीं कुछ हमें हाथा फैलाना। अल्लाह पे भरोसा रखो जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, क़यामत के मैदान में हर नबी अपनी उम्मतियों के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे आलम में बहुत सारे अंबिया ऐसे रहेंगे जिनके साथ कोई उम्मती नहीं रहेगी। क्यों? पूरी जिंदगी दावत का काम करे, एक भी ईमान नहीं लाया शख्स, एक भी शख्स ईमान नहीं लाया, तने तनहा होंगे। ऐसे आलम में अचानक एक बहुत बड़ी जमात मैं देखूंगा, मैं समझूंगा ये मेरी उम्मत होगी, ये मेरी उम्मत होगी। मुझसे कहा जाएगा ये कौम बनी इसराइल है, ये आपकी उम्मत नहीं है। फिर मेरी उम्मत कितनी बड़ी नहीं होंगी। उसके बाद और एक बड़ी उम्मत देखूंगा मैं, इतनी बड़ी जहां तक निगाह डाले इंसान जिन्नात। मुझसे कहा जाएगा ऐ अल्लाह के नबी आपकी उम्मत है, और एक खुशखबरी सुनिए, आपकी उम्मत में 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह उन लोगों में हमारा शुमार फरमाए। यह सुनना था। एक सहाबी उठकर खड़े हुए, उनका नाम उक्काशा बिन मोहसिन। बोले अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं उनमें से हो जाऊं, अल्लाह मुझे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजने वालों में शामिल कर दे। अल्लाह के नबी ने कहा अंत मिनहुम, तो उनमें से होगा, तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वालों में से होगा।
बाजू वाले साहबी देखे, ये क्या रे, बैठे बैठे टिकट मिल रही ना रे जन्नत की। उन्होंने भी उठे जोश में, अल्लाह के नबी मेरे वास्ते भी दुआ करो, मैं भी जाता हूँ। अल्लाह के नबी बोले एक की चेक रिजर्वेशन टिकट था, बुकिंग हो गई, अब वेटिंग लिस्ट, बैठो तुम्हें आराम से, तत्काल में बुकिंग करोगे तो बैठो आराम से। एक टिकट था, चले गया। अल्लाह के नबी हदीस सुना, हुजरे में गए, तहज्जुद के वक्त वापस आए, देखे ईशा की नमाज के बाद कैसा बैठी, वैसा बैठी साहबा, एक कले भी घर को गई नहीं। पूछे कहीं गुजी गई नहीं क्या तुम्हें? कैसा जाती है अल्लाह के नबी, क्या गुड न्यूज सुना को गए तुम्हें? 70,000 बगैर हिसाब के कहते हो, हमें रात भर डिस्कस कर ले बैठी है। कौन हंगारे नो, क्या नबी के घराने वाले, क्या नबी के खानदान वाले, क्या नबी के साथ जंगा में जाको गर्दना कटाइस वाले, क्या कौन कौन का तो डिस्कशन कर ले, एक बैठी है। हम ना फाइनल मालूम नहीं ना अल्लाह के नबी, आप बताइए ना कौन होंगे वो 70,000? अल्लाह के नबी जो हदीस बोले, जो आपके अल्फाज, वो हम सब के लिए इबरत। मेरे मौजू का हिस्सा आपने फरमाया, मेरे ख़ानदान वाले का तो नहीं, गर्दन कटाए सो शहीदांज का तो नहीं, मेरी उम्मत के वो लोग जो 4 खूबियाँ अपने अंदर पैदा करेंगे, क़यामत तक आने वाली उम्मत, अल्लाह ताला उनको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेंगा, बशर्ते है 4 खूबियाँ उनके अंदर रहना। वो 4 खूबियाँ कौन सी? ला यस्सहरूना वला यततय्यरूना वला यक्तऊन, वो लोग जादू नहीं करने वाले, जादू नहीं कराने वाले। नंबर 2, फाल नहीं खोलने वाले, फाल नहीं खुलाने वाले। नंबर 3, टैटू नहीं छोड़ाने वाले, बदन पर नक्शो निगार नहीं बनाने वाले। ना जादू करेंगे ना जादू कराएंगे, ना फाल खोलेंगे ना फाल खुलाएंगे, ना टैटू छुड़ाएंगे ना टैटू छुड़ाएंगे, बल्कि वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह वहदो ला शरीक पर भरोसा करने वाले होंगे। छोटे से छोटा मसला आंदे, बड़े से बड़ा मसला आंदे, सिर्फ एक अल्लाह वहदो ला शरीक पर भरोसा करने वाले, सिर्फ एक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर भरोसा करने वाले, वही से लोगों का अल्लाह जन्नत में दाखिल। हमारा है क्या भरोसा वैसा? हमारा है? हम ना क्या तो भी शादी का मोमेंट आया तो मेरा वो साड़ू मालदार है ना, उससे खर्जा मांगना पहले में, बाद में जमात में फलां कले मालदार है, उनको जा खर्जा पूछना, इनको जाको मैं चिट्ठी डालना पहले, इतने पैसे की चिट्ठी उठा, खाली ऐसे प्लान कर ले बैठता। अल्लाह से मदद तलब करे क्या? बेटी जब तुझे अल्लाह दिया, वो बेटी का इंतजाम भी अल्लाह करता बा, अल्लाह करता। तहज्जुद में उठ, मेरे रब मालिकुल मुल्क से मांग, फिर देख 100 मालदारों पर भरोसा न को कर, अल्लाह वहदो ला शरीक पर कर, फिर देख उन्हें गैब से तेरे लिए कैसे रास्ते ओपन करता। तेरे वहमो गुमान में भी नहीं रहेगा, इससे खजाने लाख तेरे सामने अल्लाह रख डालता। तेरी बच्ची की शादी का इंतज़ाम गैब से अल्लाह करता। किसी पर भरोसा नहीं करना, अल्लाह वहदो ला शरीक पर भरोसा करना। एक अल्लाह से मांगना। अल्लाह को बड़े पसंद वैसे बंदे जो डायरेक्ट अल्लाह से मांगती। आज हमें इनको गए, उनको गए, उनसे मांगे, इनसे मांगे, इनके ऊपर भरोसा करे, उनके ऊपर भरोसा करे, किसी के ऊपर भरोसा करो न को जी। और मुसीबत आती, परेशानी आती, परेशानी आई तो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा कर को, अल्लाह से मदद तलब करो। हर परेशानी अल्लाह दूर करता तुम्हारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में बैठे हैं, अचानक दुश्मन नबी के सर पर आकर खड़े हो गए। अबू बकर डर गए, बोले अल्लाह के नबी दुश्मन आ गए। उन्होंने नीचे देखे, हमें दिख जाती, क्या करना, पकड़े गए हमें। नबी ने क्या कहा? ला तहज़न या अखी इन्नल्लाह माना, मेरे भाई मत डर, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, मत डर। उसके बाद नबी ने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। ये पढ़ना था, अल्लाह ताला इनको बचा लिया। क्या इसका मतलब? अय अल्लाह हमारा भरोसा तेरे ऊपर है, अल्लाह तू बिगड़ी बनाने वाला, तू हमारा दोस्त, तू हमारा मददगार, अल्लाह हमारा भरोसा तेरे ऊपर। अल्लाह ताला मुसीबत के हल मरहले से निकाल लिया हमारे नबी को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डालने का आर्डर दिया, ए डालो जी इसे, उठा को अंगार में डालो जी, हमारे बुतान को तोड़ डाला इन्हें। मन फ़अला बिआलिहतिना, किसने किया हमारे माबूदों के साथ? या इब्राहिम, अय इब्राहिम बताओ किसने किया, ये बुतों को कौन तोड़े? उन्होंने कहा ये बड़े बुत को पूछो, बल कबीरुहुम, ये तुम्हारा बड़ा बुत है ना, वो बोलेंगा कहीं का तो गर्दन में इन्हें कुड़ाड़ी टंगा ले खड़ा। ए बुत्तान का तो बात करती क्या, बुत्तान का तो भी बोलती क्या,
बुत्ता का तुम्हें एड्रेस बताती क्या? अरे ऐसे एड्रेस नहीं बताते सो, ऐसे मुंह नहीं खोलते सो, मूर्तियां को तुम्हें कहीं गुरे पूछ रही? ए तू ज्यादा बातें करना को, हमारे माबूदों के इन्हें चिरे करे सो, इन्हें हमारे नबी हमारे बुतों को थोड़ा सा लाइन क्या करना, इसे हर्रिकू, इसे जला दो, वंसुरु आलिहतकुम, हमारे बुतों की मदद करो। अब जलाने को वास्ते बड़ा गड़ा खोदे, अंगार डाले उसमें, इतना बड़ा गड़ा, इतनी बड़ी अंगार, वो गड़े के किनारे लेक जा को खड़ा करके ढकलने नहीं होता था, वो इतनी बड़ी आग दूर से झाल मारती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से डालने के वास्ते एक गोपन तैयार किया गया, मिनजनीक बोलती है, उठा को सटने के वास्ते मिनजनीक तैयार किया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाई, उठा को सटने के वास्ते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़बान पर वही जुमला निकला जो जुमला हमारे नबी के ज़बान से नहीं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह मेरा भरोसा तुझ पर है अल्लाह, अरे अल्लाह तू मेरी बिगड़ी बनाने वाला, तू मेरा मददगार, तू मेरा दोस्त, अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाह इसी मदद किया, खुलना या नारु कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, अय आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी सलामत वाली बन जा। बोले अल्लाह, वो आग गुले गुलजार बन गए। देखने अंगार है लेकिन अंगार की पूरी तासीर अल्लाह अंदर से खत्म कर डाला। अल्लाह ताला मुसीबत में पड़े लोगों को बचाता कब? जब उसके ऊपर लोग भरोसा करते तब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, बनी इस्राइल के 3 बच्चों ने अपने माँ के गोद में बात किया, एक ईसा अलैहिस्सलाम, एक अस्हाबुल उखदूद का बच्चा, और तीसरा एक माँ का ऐसा बच्चा जो माँ दूध पिलाते जारी। और उसने दुआ किया, अल्लाह, एक आदमी को देखा घोड़सवार अचानक सामने से गुजर रहा, उसे देखकर दुआ करती, माँ अल्लाह मेरे बच्चे को इस्लाम के लिए लड़ने वाला ऐसा मुजाहिद बना। वो बच्चा बोलता, अल्लाह मुझे जैसा भी बना, ये घोड़सवार के सर का नक्को बना। बोला वो बच्चा, कौन सा बच्चा? छोटा 1 साल का दूध पीता बच्चा, दूध पीना छोड़ को अल्लाह को बोला, अल्लाह हमारे अम्मा बोल रही इस घोड़सवार जंग लड़ने वाले मुजाहिद के सर का बना, मैं बोल तो मुझे ऐसा नक्को बना। फिर दूध पीना शुरू कराया। माँ हैरान, कहीं रंगा मेरा बच्चा ऐसा बोल रहा। फिर आगे गई, वहाँ खौम वाले एक औरत को मार रही। वो औरत को क्या बोल को मार रही? जिनाकार, बदकार, फाहिशा, गंदी, ऐसी वैसी मार रही उसे, और वो औरत मार खाते जा रही। अभी औरत दुआ करी, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा जानिया नक्को बना, ऐसे जिनाकार के सर का नक्को बना। वो बच्चा दूध पीना छोड़ा, अल्लाह से दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बनाना ही चाहता है इस औरत के कैरेक्टर जैसा, मेरा कैरेक्टर बना। अब ये सुनना था, माँ हैरान हो पूछी, मेरे बच्चे तो ऐसा कहीं बोलता बा, मैं तेरे लिए इस्लाम के लिए लड़ने वाला सिपाही बनाकर दुआ करता हूँ, तू बोलता वैसा नक्को बना। मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ ये जानिया औरत के जैसा कैरेक्टर मेरे बच्चे का नक्को बना, तू बोलता ऐसा च बना। ऐ मेरे प्यारे बच्चे तू ऐसा क्यों बोल रहा मेरे बच्चे? वो बच्चा बोला, अल्लाह के हुक्म से बोला। क्या बोला? ऐ मेरी माँ, जिस घोड़सवार को देखकर तूने दुआ किया, यकीनन वो इस्लाम के लिए लड़ने वाला मुजाहिद है, लेकिन वो रियाकार मुजाहिद है, लोगों को रियाकारी दिखाने के लिए लड़ने वाला है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में लोगों के फैसले होंगे, अल्लाह ताला इस रियाकार को उठाकर जहन्नम में डाल देगा। जैसे ही मेरे रब ने उस जहन्नमी की कैफियत बताई, मैंने दुआ किया, अल्लाह तू जैसा भी बना इस रियाकार जहन्नमी जैसा मुझे हरगिज मत बना। और अब हम एक औरत के पास से गुजर रही, लोग उसे बोल बोल के मार रही, जानिया, फाहिशा, बदकारा, गंदी, ऐसी वैसी। अम्मा क्या तूने उस औरत के जबान से निकलने वाले जुमले नहीं सुने? वो औरत मार खाते जा रही थी, ये जबान से जुमले अदा करते जा रही थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह मेरा भरोसा तेरे ऊपर, तू मेरी बिगड़ी बनाने वाला, तू मेरा दोस्त, तू मेरे मददगार। अम्मा मेरे अल्लाह ने बताया ये औरत जानिया नहीं है, फाहिशा नहीं है, बदकारा नहीं है, ये नेक मुत्तकी परहेजगार औरत है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह बंदों के फैसले करेगा, उस वक्त इस औरत को मेरा परवरदिगार जन्नत में दाखिल करेगा। जैसे ही मेरे अल्लाह ने यह बात बताया, मैं फौरन दुआ करा, अल्लाह
मुझे बनाना चाहता है तो इस जन्नती औरत के कैरेक्टर जैसा मेरा कैरेक्टर बना दे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। आपको 1000 परेशानियों से बचाएगा अगर सच्चे यकीन, अल्लाह पर ईमान यकीन और यकीन कामिल के साथ अल्लाह की मदद तलब करे। बेशक मेरा मालिकुल मुल्क जो अकेला हमारा मुश्किल कुशा है, उसके सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, वो आपकी मदद जरूर करेगा, जरूर ब जरूर करेगा। तारीख दिमश्क नाम की एक किताब है, उसे अल्लामा इब्ने असाकिर लिखे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं ये। उस किताब के अंदर एक वाक़िया है, एक आदमी दिमश्क के किनारे जंगल से लोगों को अपने गधे पर, खच्चर पर बिठाकर जंगल पार कराने का काम करता था। जंगल के किनारे आना, आदमी बिठा लेना, सीधा उस पर जाना, ला भाई मुझे इतनी मजदूरी करना। अगर ऐसे सवारियों का सहारा नहीं लिए तो इन्हों जंगल में भटक जाती और जंगल के जानवरों के शिकार बन जाती। इसीलिए लोग क्या करते थे, वही से जंगल पार कराने वाले सवारियों का सहारा लेते थे। एक मर्तबा इन्हें क्या करया, एक बड़े सौदागर को ले लग गया और रास्ते में देखा इसके पास इतना माल है। मैं वहाँ गया तो इतनी मजदूरी देता इन्हें, इसे हाँच में डरा को काट लिया तो पूरा माल मुझे मिल जाता ना, आराम से बैठ को खाए जाना। उन्हें क्या करा, चाकू दिखाया, देख मुझे ये पूरा माल होना, तू दे, उतर जा। ए नक्को भाई मेरा माल नहीं दिया, मार डाल तुझे। ए ले ले भाई, मेरी जान बख्श भाई, मुझे मारना को भाई, ले ले। अब इन्हें सोचा अगर मैं इसे ले को छोड़ा, इन्हें पूरे लोगों को जाग बोल डालता, इसके साथ सवारी करो न को, इन्हें लोगों को ले जाग लूटता, फिर मेरा धंधा बंद हो जाता। उसे वहाँ माल ले को चोरी भी करया, उसे कत्ल भी करया और उसे खड्डा खोद को गाड़ भी डाला। उसकी आदत बन गई, मालदार आदमियों को बुला ले जाना, उसका माल लूटना, उसे मार को गाड़ डालना जंगल में, आदत बन गई। एक नंबर का लुटेरा, एक नंबर का कातिल। अब इस आदमी के चुंबल में एक मोमिन, एक ईमान वाला, एक अल्लाह वाला अपने माल को, पूंजी को लेकर खड़ा है जंगल पार करने। अचानक इसके सामने वो आदमी आया, बोला मैं तुम ना जंगल पार कराता हूँ, इतने दिरहम तुम्हें देना। अच्छी बात, लेवा देवी तय हो गई। बैठा उसके खच्चर पर माल ले को सीधा जंगल में बुला ले गया। बुला ले जा क्या बोला, देखो यहाँ से सीधा रास्ता जाएंगे, बहुत लॉन्ग होगा, रात हो जाती गए तक। एक शॉर्टकट रास्ता है, मैं जानता हूँ, इधर से गए तो चंद लम्हों में तुम ना गाँव पहुँचा डाल दो। शॉर्टकट रास्ता भी है, जंगली जानवर ये रास्ते पर नहीं रहते, वो रास्ते पर रात हुई तो जंगली जानवर आ जाते। कैसा करेंगे, तुझे जैसा मालूम होता वैसा बुला ले जावा। वो मेन आदमियां चलते फिरते सो रास्ते से बचा को शॉर्टकट रास्ते के बहाने से लोगों को ले जाक मार को गाड़ता था वहाँ। इन्हें ठीक है भाई, लेक निकल गया, लेक निकलिया गया। अब वो रास्ते में आगे जा रहा, आगे जाते जाते देख रहा बहुत सारे लोगों के लाशें, खबरें वहाँ पर हैं। उस जगह ले जा कोई ने बोला तू उतर भाई यहाँ से, तेरा माल निकाल को यहाँ रख, अब तेरा माल तो मेरा हो गया, अब तू मरने को से तैयार हो जा। कई को भैया ऐसा बोल रहा, मैं जंगल पार कराता था पहले एक ज़माने में, भूखा भूखा मरने लगा। जब से माल लूटना शुरू कराया, मेरी बीवी बच्चे मैं बहुत ऐशो आराम से जी रही। अब ये माल तू दे नको दे, मेरा हो गया, अब तू मरने को से तैयार हो जा। ये कई की मुसीबत भाई, मैं तेरे ऊपर भरोसा करके आया तो तू बीच जंगल में लाको मुझे जान से मारता क्या? मेरी आदत हो, तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ सकता। तुझे छोड़या जाग लोगों को बोल को मेरा धंधा बंद करता, इसीलिए तुझे जान से मारना जरूरी। अब वो अल्लाह का बंदा बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करता क्या बाहा? मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, वो पूरी कर। ठीक है, क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? एक 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तच मेरी आखिरी ख्वाहिश। अब मुझे यकीन हो गया मैं मारा जाता हूँ, एक 2 रकात नमाज पढ़ने का हुक्म दे। अगर तू मोहलत दिया, चंद लम्हों में 2 रकात नमाज पढ़ ले, अच्छी बात, पढ़ ले, जल्दी जल्दी पढ़ ले। तलवार घस ले, एक बैठा मारने को आसे उसे। अब वो 2 रकात नमाज पढ़ रहा, उसकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, उसकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। कैसा रहना तुम्हें ज़रा सोच को देखो। तुम ना फांसी पर टंगारी, तुम ना जज पूछ रहा क्या तुम्हें आखिरी ख्वाहिश है क्या? तुम्हें क्या बोल रही? 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद मुझे फांसी दे डालो।
वो 2 रकात तुम्हारी कैसी रहती, ना मैं बोल सकता हूँ ना तुम्हें सोच सकती, वैसी रहती वो नमाज। पूरी दुनिया की खशियत, अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का लगन, अल्लाह से मुलाकात का जज्बा, दिल के अंदर खौफ, अल्लाह तबारक व तआला, जिंदगी खत्म होने का डर, वो नमाज कैसी रहती ना मैं बोल सकती हूँ ना तुम्हें सोच सकती। खैर वो नमाज पढ़ना शुरू करे, अचानक उसकी जबान पर कुरान मजीद की यह आयत आ गई। ये आयत आ गई सूरह मोमिन की 7 नंबर आयत, 60 नंबर आयत। ये आयत अचानक उसकी जबान पर आ गई। वो आयत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलकुम खुलफाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह, अ इलाहुम मअल्लाह। इस आयत का तर्जुमा क्या मालूम? अल्लाह बोलता अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ, कौन है मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करने वाला? कौन है परेशानियों में घिरे हुए लोगों की मदद करने वाला? कौन है जो तुमने जमीन का खलीफा बनाने वाला? अ इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई है जो तुम्हारी मदद कर सके? अल्लाह के सिवा कोई है जो तुम्हारी रक्षा कर सके, तुम्हारी हिफाजत कर सके? ये आयत उसकी जबान पर आना था, अचानक सर सजदे में रखकर अल्लाह से गिड़गिड़ाना शुरू करे, अल्लाह तू बोलता मुसीबत में फंसे हुए लोगों को अल्लाह मदद कर, तू मुल्क तू बोल रहा है इस आयत में, मैं देखना चाहता हूं अल्लाह, मैं मुसीबत में हूं, तू मेरी मदद कैसे करता? अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो अल्लाह वाला सर सजदे में रख को दुआ करे। ये आयत अचानक उसकी जबान पर आई, दुआ करे, सलाम फेर कर देख रहा एक घोड़सवार, ऐसा घोड़सवार जो सफ़ेद लिबास में मलबूस है, लंबी तलवार उसके हाथ में है, वो घोड़ा लेकर सीधा नजदीक आया, इन्हें तलवार ले खड़ा चोर मारने के वास्ते, इसके पीछे से आग तलवार लेके एक चक झटके में उसकी गर्दन उड़ा डाले, उसकी गर्दन उड़ा दिया। और वो जा रहा, इन्हें पुकार को पूछा, ओ अल्लाह के बंदे तू कौन बा? तू कौन है भाई? मेरी मदद करे ना भाई, तू कौन है भाई? उन्हें बोला मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करने भेजने वाला उस गैबी अल्लाह का फरिश्ता हूं, उस गैबी अल्लाह का मैं भेजा हुआ हूं जो परवरदिगार तेरी मदद के लिए मुझे भेजा। ये बोला, आगे चला गया। अल्लामा इब्ने असाकिर इस हदीस को सही करार देते हैं, बड़े बड़े मदनी उलमा इस वाक़ये को बयान करते हैं, उतना सही वाक़या है। इसमें क्या इबरत है मालूम? अगर जान हल्लख पर आ जाए, तुम्हारी मुसीबत सर पर आ जाए, इंसान को जिंदगी में कभी ऐसे सिचुएशन आती, इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता। हाँ मुझे इतना जिल्लत उठाना पड़ रहा ना, मुझे पूरे गाँव वाले थू थू बोल रहे ना, पूरी जमात वाले में मैं जलील हो गया ना, अब मैं जहर खा को मरना, अब मैं फांसी टंगा ले मरना, रेल के पटरे में जाको सोना, नहीं कोसी बौड़ी में नदी में कृष्णा नदी में जाको कूद डालना, ऐसा क्या तो भी उसे नेगेटिव फीलिंग्स उसके माइंड में आना शुरू होती। अगर तुम्हारी जिंदगी से हारने जैसी सिचुएशन आ गई, 2 रकात नमाज पढ़ो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो, सज्जे में सर रखकर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगो, फिर देखो वो बिगड़ी बनाने वाला, वो मुश्किलों को दूर करने वाला, वो मुसीबतों में सहारा बनने वाला, तुम्हारी टूटी हुई जिंदगी को, गड़े हुए पड़ी हुई जिल्लत की जिंदगी को इज्जत के सर चश्मे से अल्लाह कैसे बुलंद करता, उस अल्लाह की खुदरत को आजमा कर देखो। कभी जिंदगी में खुदकुशी मत करो, क्योंकि खुदकुशी करने वाला अल्लाह का कितना बड़ा नेक वली रहंदे, अल्लाह उसे जन्नत हराम कर डाले, जहन्नम वाजिब कर डाले। खुदकुशी जिंदगी के इंसान का हल नहीं है, परेशानियों का हल नहीं है। खुदकुशी अपने आप को जहन्नम में ले डूबने का हल। खुदकुशी मत सोचो, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह पर भरोसा करने की कैसे गैबी मददें मिलती वो मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह पर भरोसा करने से कैसे गैबी मददें मिलती वो मैं आपको बताता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। कैसा लक़ब दिया? कई को लक़ब दिया? चुपके घर में हमारे जैसा बिरयानी खा को बेरशिटा ओढ़ सोने से नहीं दिया, कुर्बानियाँ दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, छोटे मोटे नम्मे
बड़े बड़े कुर्बानियां दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी कुर्बानी। सोच को देखो, एक एक कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी बड़ी है मालूम, कितनी बड़ी। अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने का ख्वाब दिखाया अल्लाह, जिब्राइल को भेज को बोलने नहीं लगाया, अरे इब्राहिम अल्लाह का आर्डर है तुम्हारे बेटे का गला काटने का, काटो। ऐसा आके जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं बोले, जस्ट एक ख्वाब पड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब को ख्वाब समझ को छोड़ सकते थे, नहीं छोड़े। अल्लाह का हुक्म है मेरे बेटे, तू क्या बोलता बा मेरे बच्चे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को पूछे, बाप अल्लाह का नबी पैगंबर, बेटा भी अल्लाह का नबी, मासूम है, अभी नबी नहीं बना, छोटा बच्चा है, नबी का खून है बदन में, आगे चल को नबी बनने वाला। नबियों जैसा जवाब इस्माइल के जबान से निकलता, या अबतिफ अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अल्लाह, ऐ मेरे अब्बा आप वही कीजिए जिसका आर्डर अल्लाह आपको दे रहा, ये तुम्हारे बेटे को सब्र करने वाला तुम पाएंगे मेरे अब्बा। 12 साल का छोटा बच्चा ये जवाब देता क्या जी, ये जवाब देता क्या जी। या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी राइतु, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ तेरा गला काट रहा हूँ मेरे बेटे, तू क्या बोलना चाहता है इस बारे में। मेरे अब्बा वही कीजिए जिसका हुक्म अल्लाह आपको दे रहा। ये बात आज के ज़माने में कोसा तो बाबा अपने बेटे को बोलेंगे, मेरे बेटे तुझे गला काट रू रे, मैं क्या बोलता रे तू बेटा, क्या बोलता, तू मेरा असली बाबा हो कि हमें हमारा अम्मा पूछ, तू ठेर मेरा गला काटने बैठा, तू असली बाबा हो कि हमें, यह जवाब देता था बेटा। पैगंबर अल्लाह ताला का नबी, नबियों जैसा सवाल अल्लाह की वही ख्वाब के जरिए वही का मसला अपने बेटे के सामने रख रहा। अल्लाह ताला इस्माइल उस मासूम बच्चे के जवाब को भी कुरान की आयत बना दिया, मेरा रब कुरान की आयत बना दिया। अल्लाह ताला लेके निकले, आंख पर पट्टी बांधे, कहीं ज़बा करते वक्त तुम्हारी निगाह मेरे ऊपर, मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर, रहम आकर ये हुक्म अधूरा ना छोड़ दे, अब्बा पूरा कीजिए ये काम। पट्टी बांध लिए, बेटे के आंख पर पट्टी लिटाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर छुरी चलाए, अल्लाहु अकबर, छुरी चल गई, गर्दन कट गई। पट्टी निकाल कर देख रही, जिब्राइल के दामन में इस्माइल खड़े हैं और ज़बा हुआ जन्नत का दुम्बा ज़बा हुआ पड़ा है। आसमानों से आवाज आई, खद सद्दक़त रुया या इब्राहिम, इब्राहिम तुमने हमारे ख्वाब को सच कर दिखाया। ये सुनने तुमने आसान लग रहा होगा, मुझे बोलने आसान लग रहा होगा, ये सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में अगर फिट कर को देखे, कोसा बाप जी अपने लखते जिगर को गर्दन काट को दिखाए अल्लाह की रज़ा की खातिर। वो भी 10 बेटे नहीं थे ज़बा कर को करने, एक किचक नूरे नज़र लगते जिगर, बुढ़ापे का सहारा प्यारा बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने इब्राहिम निकले। ऐसे एक नहीं कई कुर्बानियाँ देने के बाद अल्लाह इनको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया, उसमें की एक कुर्बानी और अल्लाह हुक्म देता इब्राहिम को। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे हैं, 9 महीने के बच्चे हैं। अल्लाह आर्डर दिया, ऐ इब्राहिम हमारा हुक्म है, तुम्हारी प्यारी बीवी हाजिरा, तुम्हारे मासूम प्यारे बच्चे इस्माइल को यहाँ से इराक से अरबस्तान की सरजमीन पर 4,500 किलोमीटर दूर हमारा आर्डर है, छोड़ो निकलो आओ। अल्लाह के हुक्म के सामने कई को अल्लाह, क्यों अल्लाह, वहाँ रहे तो क्यों जीते अल्लाह, या उनके वास्ते पानी है क्या, खाना है क्या, लोगा है क्या, क्या अभी अल्लाह के हुक्म पर सवाल नहीं। जो मेरा रब कह दिया आमन्ना सद्दक़ना, उसके ऊपर सवाल नहीं। फिर अपनी बीवी को लिए, अपने बच्चे को लिए छोटा सा खाना लिए निकले। इराक से अरबस्तान की ज़मीन, कहाँ निकले, वहाँ निकले जहाँ आज मक्का मुकर्रमा का काबतुल्लाह है, वहाँ निकले जहाँ आज को है सफ़ा व मरवा की पहाड़ी के दरमियान का हिस्सा है। 4,500 किलोमीटर जा रही, क्या अभी बोल रहे नहीं बीच में, जहाँ छोड़े मैदान में छोड़े निकले। अब हाजरा परेशान, ये जगह कहीं को छोड़ को जा रही, हम ना किसके हवाले कर को जा रही, मेरे सरदार या सैयदी, ऐ मेरे सरदार
आयना तज़हब, तुम कहाँ जा रहे हो और हमको किसके हवाले करके जा रहे हो? अल्लाह का हुक्म क्या है? छोड़ना, निकलना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ रही, जा रही, क्या भी नहीं बोल रहे, पलट को तक नहीं देख रहे। अब बोलेंगे, डिटेल बताएंगे, क्या भी नहीं बोल रहे, चुपचाप निकल रही इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाजरा को मालूम हो गया हर काम मेरे शौहर अल्लाह के हुक्म से करती, शायद यहाँ छोड़ने में अल्लाह की मर्जी होगा। पूछी हाजरा, ऐ मेरे सरदार, क्या हमको इस बयाबान मैदान में छोड़कर जाने का आर्डर आपको अल्लाह ने दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक की जानिब मुंह किए हैं, अपनी बीवी बच्चों की जानिब नहीं, उधर का उधर देखते हुए हाँ में सर हिलाए, हाँ अल्लाह का हुक्म है। अब ये सुनना था वो अल्लाह वाली हाजरा, क्या अल्लाह की नेक बंदी, क्या मुत्तकी, क्या परहेजगार, उसका भरोसा भी क्या है जी अल्लाह की ज़ात पर। हाजरा फौरन कहती है, तब तो जाओ बेफिक्र, इन्ना अल्लाह ला युज़िउना, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह का हुक्म है तो तुम्हें बेफिक्र जाओ, अल्लाह हम ना ज़ाया नहीं करता, आराम से जाओ। तुम्हें क्या भरोसा जी हाजरा का? किस मैदान में? एक ऐसे मैदान में जहां चिड़िया चींकने वाली नहीं, कौवा कांकने वाला नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई पत्ता नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई हैवान नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ आबादी का, खाने के वास्ते खाना नहीं, पीने के वास्ते पानी नहीं, तपती रेत, खतरनाक धूप, खतरनाक गर्मी, बियाबान मैदान में अपनी बीवी हाजरा छोड़े निकले मासूम बच्चे। अब हाजरा के पास छोटा खाने का हिस्सा है, थोड़ा पानी है, देखते ही देखते वक्त गुजरता गया, खाना खाली हो गया, पानी खाली हो गया। अब क्या है हाजरा के पास? कुछ नहीं है। माँ कुछ खाएगी तो ना मासूम बच्चे के लिए सीने में दूध आएगा, माँ कुछ भी नहीं खाएगी तो मासूम बच्चे को दूध कहाँ से आएगा? अब दूध आना बंद हो गया, माँ के पास ग़िज़ा खाली हो गई। शीरखार बच्चा, अल्लाह का नबी होने वाला इस्माइल, मासूम 9 महीने का बच्चा चीख मार को रो रहा। कहीं को वास्ते रो रहा? उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी, रो रहा मासूम बच्चा। हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को रेत पर लिटाती हैं, रेत पर लिटाकर दौड़ते हुए जाती है। कहाँ? एक ऐसे टीले पर जाती है जिसे आज सफ़ा कहते हैं, हम लोग सफ़ा कहते हैं। सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ती है हाजिरा और दूर दूर तक देखती है हाजिरा, कोई आ तो नहीं रहा, कोई काफिला इधर से गुजर तो नहीं रहा। देखे मेरे अल्लाह की मदद आएगी, मेरा अल्लाह मुझे तड़पा तड़पा के यहाँ नहीं मारेगा, मेरे अल्लाह की मदद आएगी, मुझे भरोसा है मेरे रब की ज़ात पर, मेरे अल्लाह की मदद आएगी। कैसे आएगी? दूर दूर तक हाजिरा देख रही है, सफ़ा पे चढ़ के कोई नहीं गुजर रहा, उधर से कोई काफिला नहीं जा रहा। फिर दौड़ते दौड़ते आती है इस्माइल के पास। वो इस्माइल चीख मार मार के रो रहा है, वो मासूम बच्चा रो रहा। मासूम बच्चे की रोने की आवाज़ जब माँ की ममता सुनती, उसके दौड़ने में और तेजी आ जाती, और तेजी से दौड़ती वो माँ। उधर एक टीला है ऊंचा, उसे मरवा हम कहते हैं आज। वो मरवा नामी टीले पर वो माँ चढ़ती है और दूर दूर तक देखती है, कोई काफिला जा रहा क्या इधर से, कोई सा तो भी काफिला जा रहा क्या, मैं इसे रोक लूं, इनके पास थोड़ा खाना लूं, थोड़ा पानी लूं, मेरे बच्चे के हल्लक में डालूं। कोई काफिला नहीं जा रहा, लेकिन हाजरा को भरोसा है अल्लाह की ज़ात पर, मेरा अल्लाह मुझे मेरे बच्चे को तड़पा के यहाँ नहीं मारेगा, मेरे अल्लाह की मदद आएगी, आएगी सो आएगी। वो कैसे आएगी मैं देखना चाहती हूँ, मेरे अल्लाह की मदद मैं लेना चाहती हूँ। फिर दौड़ कर आती है बच्चे के पास, बच्चा चीख मार के रो रहा है। बच्चे की रोने की सदा सुनकर माँ की ममता तड़प जाती और तेजी से दौड़ती, फिर सफ़ा पर दौड़ती है, सफ़ा पर देखती है, फिर उतरती है, फिर बच्चे के पास से और तेजी से दौड़ती है, फिर मरवा पे चढ़ती है, मरवा पे दूर दूर तक देखती है, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर। अर्श वाला मेरा मालिक ये तमाम मंजर अर्श पर मुस्तवी होकर देख रहा है। हाजिरा मेरे ऊपर भरोसा करने वाली मेरी बंदी, मेरी रहमत के लिए, मेरी मदद के लिए कैसे तड़प रही, कैसे दौड़ रही, कैसे देख रही।
7 चक्कर इस माँ की ममता ने पूरा कर दिया। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। 7वां चक्कर जब उस माँ ने पूरा किया, इस्माइल के कदमों से मेरा मालिकुल मुल्क, जो सारी कुदरतों, सारी दुनिया पर कुदरत रखने वाला कादिर मुतलक है, इस्माइल के कदमों से जमजम उगा दिया, जमजम निकाल दिया। एक ऐसी जगह से रेत में से पानी निकाला जहां से कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि यहां से पानी निकलेगा। पानी निकल गया। हाजरा दौड़े दौड़े आई, पानी को देखी। इब्रानी लैंग्वेज में कहती है जम 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 जम। इब्रानी लैंग्वेज है ये। इसका मतलब क्या? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जा रुक जा रुक जा। पानी रुक गया। पी हाजरा, इस्माइल को पिलाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पे भरोसा करने वालों के लिए मेरा अल्लाह गैब से ऐसी जगह से रिज़्क़ देता, ऐसी जगह से तुम्हारे लिए रास्ते ओपन करता जहां तुम्हारा माइंड भी काम नहीं करता, सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं रहेगा। मेरे परवरदिगार को, मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हाजरा का ये दौड़ना, सफा से मरवा, मरवा से सफा, अल्लाह पे भरोसा करते हुए अल्लाह की मदद की तलाश में सफा से मरवा का चक्कर काटना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, क़यामत की सुबह तक हाजियों के हज का और उम्रे का अल्लाह रुकन से बना दिया। आज जो भी लोग जाते हैं हरमैन शरीफैन को, मक्का मुकर्रमा को, चाहे उम्रा करने वाला हाजी हो, चाहे हज करने वाला हाजी हो, अपने हज के अंदर, अपने उम्रा के रुकन में जब तक हाजिरा की सुन्नत के मुताबिक सफा से मरवा, मरवा से सफा के साथ सही मुकम्मल नहीं कर लेता, ना इसका हज मुकम्मल, ना उसका उम्रा मुकम्मल। और जो ग्रीन लाइट का सिग्नल है, हाजरा वहां दौड़ी थी मासूम बच्चे की चीखें सुनकर, मेरा अल्लाह भी वहां तेजी से दौड़ने का हुक्म दे दिया। अल्लाह की रहमत में दौड़ो तुम, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके दौड़ो तुम, अल्लाह तुम्हारी भी गैबी मदद करेगा, जैसे हाजरा की मदद अल्लाह ने किया। काफिला फंस गए, आबादी बढ़ गई। इस्माइल से अल्लाह इब्राहिम की कई साल के बाद मुलाकात कराया, उस जगह हुक्म दिया यहाँ काबा बनाओ, वहाँ काबा बनाया गया। आज जो मक्का आबाद है, कई हजार साल पहले वहाँ तिनका भी नहीं था, कोई परिंदा भी नहीं था। अल्लाह पे भरोसा करने का नतीजा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मेरा वक्त ख़त्म होने को है, 7 मिनट बाकी हैं, लेकिन मेरा मवाद और बहुत सारा है। थोड़ा सूद के बारे में बोलो, सूद के बारे में आजकल पूरा वही चल रहा है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की ज़ात पर भरोसा करना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की ज़ात पर भरोसे के साथ जीना। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, एक नौजवान सहाबी हैं जिनका नाम खालिद बिन वलीद है। खालिद बिन वलीद ये वो सहाबी हैं, दुनिया में तलवारां चलाए तो आसमान वाला अल्लाह इनके लिए टाइटल नाजिल करता था। आज से खालिद खालिद नहीं, खालिद सैफुल्लाह है, ये अल्लाह की तलवार है खालिद। खालिद बिन वलीद के लिए आसमान से टाइटल उतरता था। ऐसे खालिद बिन वलीद उमर बिन ख़त्ताब के दौरे खिलाफत में जो जंगा में जाते थे, दुश्मन के छक्के उड़ाते थे, मुल्क फतह कर लेते थे, इस्लाम का रक़बा हद से ज़्यादा फैला, लोगों का भरोसा खालिद बिन वलीद पर मजबूत होने लगा। मुल्क शाम की जानिब भेज रही उमर बिन ख़त्ताब, जाओ जी लड़ो। मुसलमाना क्या बोल रही है, हमारे साथ खालिद है तो जंग जीत लेती है हमें, खालिद है तो छक्के छुड़ा डालती है हमें। उमर बिन ख़त्ताब देखे, ओहो लोग खालिद बिन वलीद पर इतना भरोसा कर रही क्या। उन्होंने क्या करे, जंग शुरू होने से पहले एक आदमी को भेजे लेटर लिख को कि इस जंग में खालिद बिन वलीद को कमांडरी से उमर बिन ख़त्ताब माजूल करते हैं। अरे खालिद, तुम कमांडरी के पोस्ट से रिटायर्ड होते हो, चलो निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं जंग लड़ने की, तुम ना, कोई ज़रूरत नहीं कमांडरी लड़ने की, जंग को संभालने की, कमांडरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो निकलो यहाँ से। और एक मामूली आदमी को ला कमांडर बनाओ, जिसे तलवार भी चलाने आना नहीं, जिसे जंग में लड़ने का हुनर भी नहीं रहना, वैसे आदमी को कमांडर बनाए। खालिद बिन वलीद जाको कोने में लड़े, मामूली सिपाही बन को, हद से ज़्यादा जैसे मुसलमान जीतते थे ये जंग भी जीत डाले। काफिला मदीने का आया, उमर बिन ख़त्ताब हज़रत खालिद बिन वलीद को गले मिल को बोले, अय खालिद,
मेरी कोई दुश्मनी नहीं तुम्हारे से, तुम्हें समझते रहूँगा। कई को मिंजे उमर बिन खत्ताब कमांडरी से निकाल डाले। लोगां क्या बोल रही, लोगां बोल रही खालिद जंग जिता को देता हम ना, खालिद रहे तो जंग जीत लेती हमें, खालिद बिन वलीद रहे तो छक्के छुड़ा डालती हमें। अरे खालिद तुम बताओ, ये जितने भी मुल्क हमें फतह करी, ये क्या खालिद की वजह से करी या अल्लाह की मेहरबानी से करी? तुम्हें बोलो। खालिद बिन वलीद ये सुनकर रोने लग गए, बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुदरत के सामने क्या हैसियत है खालिद की, अल्लाह की ताकत के सामने क्या औकात है खालिद की। अरे उमर, अल्लाह की मेहरबानी से हमने इतने मुल्क फतह किए हैं, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की गैबी ताकत से हमने ये मुल्क फतह किए, खालिद की इसमें कुछ भी रोल नहीं है। हाँ, यही सुनना चाहता था। लोग अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कम कर को खालिद बिन वलीद पर भरोसा करने लगे थे, इसीलिए तुमने जंग की कमांडरी से में निकाल डाला। अब लोगों को मालूम हुआ खालिद अगर जंग की कमांडरी नहीं करे तो भी हमें जंग जीत लेती, जैसे ये जंग जीते। अल्लाह हमने जिताया, खालिद नहीं जिताता, अल्लाह जिताता। अल्लाह पे भरोसा मजबूत होने देगा तो मैं ये चीज़ करया। मेरे भाइयों, वक्त मेरा ख़त्म हो गया। मुझे सूद के ऊपर बोलो बोलकर बोल रहे, सूद के ऊपर भी ज़रा बोलो, लोग आज सूद में ज़्यादा मुलविस हैं। सूद के मुतालिक मेरा बयान अलग गिच है, ये 5 मिनट में एंड होते स्टम्प बोलने की बात नहीं है। वो सूद के बारे में मैं बोलना शुरू करा तो सूद खाने वाले को तलवार लेको सीना काटे सरकार हता, यानी तो तीर लेको अंदर चुबाए सरकार हता। मैं हक बात कुरान और हदीस की दलील के साथ बोलता हूँ, वो सुनने वाले को कड़वी भी लगती, बहुत बुरी भी लगती, मैं उसे केयर नहीं करता। कई को तो तुम्हारे वत्ते आदमी में एक आदमी सूद छोड़ा तो मेरे नजात के वास्ते काफ़ी। सूद खाने वाला जहन्नम में जाता, हलाल खाने वाला जन्नत में जाता। इतना एक याद रख लो, अल्लाह ताला जन्नत सिर्फ और सिर्फ हलाल खोरों के वास्ते बनाया, हराम खोरों के वास्ते नहीं बनाया। हलाल खोरों के वास्ते जन्नत बनाया, और सूद खाने वाला एक नंबर का हराम खोर के लिए अल्लाह जन्नत नहीं बनाया। अब आप लोग अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो अल्लाह के वास्ते सूद खाना छोड़ डालो। सूद खाए तो जन्नत नहीं मिलती। अगर जन्नत में जाना चाहते हैं, अपने हलाल लुक़मा बनाओ, अपने पेट में हलाल लुक़मा उतारो। सूद का 1 रुपया खाने वाला अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने के बराबर का गुनाह कमाता उन। 1 रुपया तुम्हें वड्डी का खाए तो वड्डी का, सूद का, तुम्हारी वो माँ जो 9 महीने पेट में रख ले को डिलीवरी का दर्द सह को दुनिया में जन्म दी ना, उस माँ के साथ 36 बार रेप करे सत्ता गुना। इस्लाम में ये इतनी गलीज मिसाल सिर्फ सूदखोरों के वास्ते अल्लाह दिया, किसी और गुनाह के वास्ते इतनी घटिया मिसाल अल्लाह नहीं दिया। अब इससे बड़ी शर्म की हमना और क्या बात होना, हज़ारा के रुपए निगल ले रही, शर्म भी नहीं आ रही हमना। अल्लाह के वास्ते सूद न को खाओ, सूद की ज़िंदगी में बरकत नहीं है। आज संगा कहाँ मिले, हाँ बैकान को संगा के नाम पर मंगा बना बिठा डाली हमारे औरतन। संगा लेने वाले संगा लेती, बैंक से लोन लेने वाले वड्डी लेती, वड्डी भरती, हाँ, या कोई गोल्ड लोन, गोल्ड गिरवी रखो लोन लेती या कर्जा लेती और इंटरेस्ट भरती। याद रखो ये तमाम बातें सूद में शामिल है। और बाज़ लोग लाइफ इंश्योरेंस कराती, लाइफ इंश्योरेंस कराना भी सूद है, वड्डी है। अल्लाह के वास्ते सूद नको खाओ। जितने लोग बैंक से लोन ली, जितने लोग ये संगा में पैसे लेती, जितने लोग लाइफ इंश्योरेंस कराई, जितने लोग ये गोल्ड लोन लेको सूद भर रही, उनकी ज़िंदगी कभी सुकून से नहीं रह सकती। मेरा चैलेंज है ये, कभी सुकून वो लोग नहीं देख सकते। एक परेशानी छोड़े दूसरी परेशानी, दूसरी छोड़े तीसरी, तीसरी छोड़े, जिंदगी मुसीबत का अड्डा बन जाती। कई को बोले तो सूद खोरी में अल्लाह बरकत नहीं रखा, सूद खोरी में अल्लाह सुकून नहीं रखा, सुकून हलाल रिज़्क़ में रखा। एक बड़ा बिजनेस वाला कहते, करोड़पति कहते, बड़ा करोड़पति कहते, लेकिन उसे रात में टेंशन से नींद नहीं आती, नींद के गोलियां खा सोता उन्हें। बदन में 1000 बीमारियां, शुगर है मिठा नहीं खा सकता, बीपी है साल्ट नहीं खा सकता, फिर क्या खाना, फीका फीका खाना, गंजी निगलना, सोना, सोए तो भी नींद नहीं आती। इतने पैसे वहाँ टकलिंग कहते, इतने पैसे उन्हें डुबा डाला कहते, टेंशन, नींद की गोली खा सोता। मेरी नज़र में एक नंबर का भिखारी इन्हें, ना मिठा खाने को है, ना खट्टा खाने को है, ना खारा खाने को है, क्या अभी खाने को नहीं, फीका फीका गंजी निगलता, नींद की गोली खा सोता। उसके मुकाबले में वो गरीब जो झोपड़पट्टी में
टेंशन नहीं सर का, हलाल कमा को, हलाल का रागी मुद्दा खा को, खर्राटे की नींद, टेंशन नहीं सर का, सोता देखो। उन्हें सबसे बड़ा मालदार, उन्हें उसके बदन में सेहत है, तंदुरुस्ती, कोसा शुगर भी नहीं, कोसी बीपी भी नहीं, हट्टा कट्टा बदन, सेहत और तंदुरुस्ती, टेंशन नहीं, सो नींद, सबसे बड़ा मालदारी ने। अल्लाह के वास्ते इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारो, अमन वाली ज़िंदगी आप देखेंगे, हलाल ज़िंदगी गुजारो, सुकून वाली ज़िंदगी अल्लाह आपको नसीब करेगा। कोई भी मुसीबत आए अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना सीखो, अल्लाह से मदद तलब करना सीखो। हर मुश्किलों से अल्लाह तुम ना वैसा निकालता जैसे मस्के से बाल निकल जाता। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारे हबीब भाई से गुजारिश करता हूँ, ज़रा इधर आओ।